Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that we discussed in the last lectures inventory valuation by perpetual system. So today we are going to discuss that how we can find the valuation of or value the inventory, or how we can compute the value of the inventory under periodic method. Same here, we have to follow the FIFO, LIFO and weighted average cost method. So we are going to learn inventory valuation under periodic method with the help of FIFO, LIFO and weighted average method. So guys, now we have a question here that Malik company uses a periodic inventory system. As you know, we have a clear concept about periodic and perpetual. In perpetual, we have to update our inventory as we sold the goods, and we record the cost of goods sold immediately. But in periodic inventory system, we record or we update our cost of goods sold, or we maintain the record after a particular period, maybe 1 month, quarterly, or after 6 months. It depends on the volume of the inventory. It depends on the nature of the business. It depends on the what the business wanted and how much the real time information they needed. Anyways, so over here Malik company uses a periodic inventory system. The beginning inventory of particular product and the purchases during the current year were as follows. As you can see that January there is no purchase in the February, and there is a purchase on the March. There is no purchase in April and May and June. Now we have a August purchase, we have October purchase. Now you can see that very limited information. We have very limited the inventory transactions, that only 1 and 2 and 3 purchases throughout the year and 1 beginning inventory. So now you can see that the volume of inventory of purchasing is very less, very restricted, very limited. So we don't need for this kind of business, we don't need that, we don't feel that we should follow the perpetual system. So for this business, the periodic inventory system is feasible. The periodic inventory system is suitable for this business. So now, as per the record, the beginning inventory, we have 60 units at the rate of 105. So we multiply 60 into 105, we will get 6,300. On March, we have a purchase 30 units at the rate of 115. So we multiply 3450. August, we purchased 90 units at the rate of 125. 90 multiplied by 125, we will get 11250. And October, this. Okay, total available for sale, we have the units is 200. This is the units, you can see 60, 30, 90, and 90, 90, 180, and 180, 20 is 200 units. And the total amount, you can see here, 6,300 plus 3,450 plus 11,250 plus 2,700. So total will be, if we sum them, so total will be 23,700. So now, with the help of this, we can find that the total available for sale units we have 200, and the total cost of beginning inventory plus all purchases is 23,700. So what they're saying, at December 31st, the ending inventory of this product consisted of 55 units. Now what in this question, in periodic question, what they already give you, we can do the physical counting and we can find out that ending inventory of this product consists of, this product means they are talking about the particular product. So this product consists of 55 units. It means that ending inventory how much they have, 55. इसका मतलब ये है कि इनके पास ending inventory के units कितने बच गए, 55. Now you can see that we had 200 units और 55 बच चुके हैं. इसका मतलब है how many units have been sold. You can find out very easily. 200 available थे, 55 बच गए, इसका मतलब है 145 sold हो गए. And selling price उनकी क्या थी, 150 each थी. Using what we are doing, we are using periodic costing procedure, determine the cost of goods sold relating to this product and cost of year ending inventory under LIFO, FIFO and weighted average method of the flow assumption. LIFO क्या मतलब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट वेटेड एवरेज मेथड. अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है. लीफो में हम क्या करने जा रहे हैं. लीफो में हमें ये करना है कि जो लास्ट में हमने परचेज़ किए होंगे वो हमने पहले बेच दिए होंगे. अब लास्ट वाले कौन से हैं, इसमें आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं. यू कैन अंडरस्टैंड दैट
लास्ट के जो यूनिट्स हैं वो हमारे अक्टूबर और अगस्त के यूनिट्स हैं। तो हमने पहले इनको बेच दिया होगा किसके हिसाब से, लीफो के हिसाब से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने पहले यूनिट्स कौन से बेचे होंगे, 60 बेचे होंगे, 30 बेचे होंगे, 90 में से कुछ बेचे होंगे, क्योंकि हमने टोटल 145 बेचने हैं, क्योंकि 55 हमारे पास बच गए हैं। टोटल हमारे पास कितने थे, 255 बच गए हैं। इसका मतलब है, अंडरस्टूड बात है कि 145 यूनिट्स हम बेच चुके हैं, यानी हमारे कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड जो होगी, सॉरी नॉट कॉस्ट, यूनिट सोल्ड जो है हमारे पास 145 है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। इज़ वेरी सिंपल। periodic as compared to perpetual is very simple to do it because it's very easy to understand। यहाँ पे कोई बीच में सेल नहीं आ रही कि हम बार बार इसको कंसिडर करें सीएस कितनी है, सीएस कितनी है। यहाँ हमें उसने बता दें कि हमने 55 यूनिट्स हमारे बच गए, बाकी बिक गए, उनकी प्राइस क्या थी 150। ओके, अब फीफो में कहाँ के बिके होंगे, कहाँ के बचे होंगे, बहुत समझदार है आप लोग माशाल्लाह। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया होगा पहले बिक गया होगा, तो बचा कौन सा होगा, आखिर का। इस तरह लीफो में कौन सा बिका होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट में आए होंगे, हमने इसको पहले बेच दिए होंगे, तो बचे कहाँ के होंगे, ऊपर के बचे होंगे। और वेटेड एवरेज कॉस्ट में हम क्या करते हैं, टोटल यूनिट्स तो टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर लेते हैं, पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है, और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको 55 यूनिट्स, तो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री आ जाती है। एनीवेज वी विल सी वन बाय वन। सो गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू नोट इट डाउन। तो अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास सबसे पहले हम फीफो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है कि हमने कितने यूनिट्स बेचे होंगे। और अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमने 145 बेचे। कैसे पता चला हमें 145 बेचे, टोटल यूनिट्स हमारे पास बेचने के लिए कितने थे 200, और कितने बच गए, देखिए इट्स वेरी सिंपल। कॉस्ट एंडिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स कितने बच गए 55। 200 थे हमारे पास बेचने के लिए, साफ लिखा हुआ है टोटल अवेलेबल फॉर सेल 200 यूनिट्स, 55 बच गए। देखें ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें इतना कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि अगर आप कंफ्यूज होते हैं। 200 यूनिट्स थे हमारे पास, 55 एंडिंग इन्वेंट्री बच गई है, इसका मतलब है 145 बिक गए हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी या यूनिट सोल्ड हमारे कितने बिक गए होंगे 145। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है तो हम 145 से निकाल लेंगे। अब फीफो कर रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये पहले आए होंगे, हमने पहले बेच दिए होंगे, तो बचे कहाँ के होंगे 145 नीचे से बचे होंगे। तो 20 लेंगे हम, 90 लेंगे, 20 90 कितने हो गए 110 हो गए, और फिर यहाँ से हमने इतने ले लेंगे हमारे 145 यूनिट्स हो जाए। तो आप ये देखिए इन्होंने फीफो में क्या किया होगा, 60 यूनिट्स लिए, 30 लिए, 55 लिए। अब 60 यूनिट्स कहाँ से लिए इन्होंने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आए होंगे पहले बेच दिए होंगे, तो हमने ये बेचे 60 30 90 हो गए, और हमने 145 बेच दिए, तो हमने कुछ यूनिट्स यहाँ से ले लिए। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, 60 यूनिट्स लिए, 30 लिए, और यहाँ से कितने लिए 55। यहाँ के देखिए कैसे पता चलेगा, यहाँ से कहाँ से लिए 60 इन्होंने कौन से वाले लिए 105, 30 वाले कौन से लिए 115। तो 60 या 30 कितने होते हैं 90 को माइनस करें 145 से, तो हमें पता चल जाएगा हमें यहाँ से कितने यूनिट्स बेचने हैं। दोनों यूनिट्स लिए 55। तो 55 किस प्राइस के बेचे होंगे, कॉस्ट प्राइस पे 125। तो हम 55 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 125 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमें टोटल यहाँ कितने बचाने हैं 145 बचाने हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अच्छा बचाने नहीं है, यहाँ पे हमने बेचने हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, जो पहले क्या आए होंगे हमने पहले बेच दिए होंगे। तो हमारे पास पहले वाले कौन से हैं, ये वाले हैं, ये वाले और ये वाले। ओके, तो अब अच्छा बचे जो होंगे वो कौन से बचे होंगे फीफो में। अब हमें कितनी यूनिट्स बचे हैं 55। तो देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया होगा पहले बिक गया होगा, तो बचे कहाँ के होंगे, आखिर के होंगे। तो हमने 55 बचाने, तो 20 यहाँ से लेंगे और 35 यहाँ से लेंगे, ताकि 20 और 35 हमारे कितने बन जाए 55 बन जाए। आप देख लें इन्होंने एंडिंग यूनिट्स 20 नीचे से लिए और 35 ऊपर से लिए। ये हमारी कौन सी इन्वेंट्री है, ये हमारी वो इन्वेंट्री है जो हमारी अक्टूबर की है और अगस्त की है, एंडिंग इन्वेंट्री। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले माल आया होगा पहले हमने बेच दिया होगा, तो बचा कहाँ का होगा, आखिर का होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, ये हमारे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 27, दोनों को ऐड कर लेंगे 7075 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है फीफो के हिसाब से। अब देखिए लीफो में क्या, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, तो सबसे हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि लीफो में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो
इन्वेंट्री हमने लास्ट में ली होगी, हमने उसको पहले बेचनी है, और बेचनी कितने आपको पता है 145 यूनिट्स बेचने हैं। तो हम 20 यहाँ से लेंगे, 90 यहाँ से लेंगे, 20 90 कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे, 110 30 यहाँ से लेंगे, 110 और 30 कितने होंगे 140। फिर हमने 5 यूनिट्स यहाँ से लेने हैं, वो किस प्राइस के लेने हैं 105 के। तो देखिए इन्होंने कैसे यहाँ निकाला है 5 यूनिट्स 105 के लिए। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो इन्वेंट्री लास्ट में आई होगी हमने पहले बेच दी होगी। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं हम, इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री निकाल रहे हैं। और एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे आपको पता है कितनी बचेगी, सारे जब ये यूनिट्स सोल्ड हो चुके हैं तो यहाँ की इन्वेंट्री कितनी बचेगी 5 हमने यूनिट्स यहाँ से ली तो 55 बचेंगे, किस प्राइस के बचेंगे 105 के। सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो हमने लास्ट में परचेज़ किए होंगे हमने उसको पहले बेचना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल हम यहाँ से निकालेंगे, हमने 145 बेचते हैं, 200 में से माइनस 55 हमने बचाने हैं, तो कितने बिके होंगे हमारे 145। तो हम 20 यहाँ से लेंगे, 90 यहाँ से बेचेंगे, 30 यहाँ से बेचेंगे, 5 यहाँ से लेंगे। जब हम 5 यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 55, और किस प्राइस के बचेंगे ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि 20 हमने लिए, 90 लिए, 30 लिए और 5 हमने वहाँ से लिए 105 के, तो हमारे पास 60 थे। 60 में हमने जब 5 लिए तो हमारे पास कितने यूनिट्स बच गए 55। आपने 55 बचाने हैं एंडिंग इन्वेंट्री। अब किस प्राइस के बचते हैं ये डिपेंड करता है फीफो लीफो पे आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपके पास प्राइस आ गई 5775। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाली लीफो के मुताबिक, ये हमने एंडिंग इन्वेंट्री निकाली लीफो के मुताबिक। अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड के जरिए निकालेंगे। तो कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट का बहुत आसान तरीका है। अब आपको देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आपके पास टोटल यूनिट्स कितने के हैं 200 और टोटल की प्राइस कितनी है 23,700। 23,700 को आप डिवाइड करें 200 से ताकि आपको पर यूनिट कॉस्ट आ जाए, और पर यूनिट कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर लें 55 यूनिट से, तो ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी क्योंकि इतने यूनिट्स बचे हुए हैं आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है 23,700 को डिवाइड करना है 200 यूनिट से ताकि आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाए। जब पर यूनिट कॉस्ट आ गई तो 145 आपने बेच दी है, तो मल्टीप्लाई कर लें 145 से, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट की। और 55 यूनिट्स आपके बचे हुए हैं, तो जो भी पर यूनिट कॉस्ट आई है उसको 55 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। यहाँ देखिए यही हो रहा है 23,700 डिवाइड बाई 200 इन्होंने यहाँ पे किया होगा, इसको 23,700 डिवाइड बाई 200 किया है। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 118। अब आपको पता है कि कितने बिके हैं 145 यूनिट्स बिचे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गई। और कितने यूनिट्स बचे हैं 55 बचे हैं, और आपके पास 55 को 118.5 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ गया। द ईजीएस्ट मेथड इन पीरियोडिक मेथड इज दैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं वेटेड निकाल लेते हैं, वेट निकाल लेते हैं कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कैसी है कितनी है। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी थी और उनकी टोटल यूनिट्स कितने थे, तो हमारे पर यूनिट आ गई यहाँ पर 118.5 पर यूनिट। अब हमने 145 बेच दिए हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई अंडर वेटेड एवरेज मेथड। और 55 यूनिट्स बच गए तो उसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। सो गाइस दिस इज़ द पीरियोडिक मेथड बाय फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। फिर आप इसको अगर आप इसको आप कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ कितनी है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी फीफो में कितनी है। मैंने बताया था आपको एंडिंग इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा किसकी होती है फीफो की होती है। आप देख सकते हैं यहाँ 7,000 है, यहाँ 5,000 है, और ये क्या कहलाएगी एवरेज 6,500। सो गाइज take into consider and watch the video very carefully and do the question by your hand. Okay, take good care. Thank you.